Hello students, welcome back to your channel Lecture Guruji. I am Bhatia. Welcome you all to the session. In today's session it is something different. A lot of students have been requesting me to cover up the details about the omitted portion for the board examinations. Let me tell you that tentative guidelines which are coming from the various sources about the board examination of 2021 regarding 10th standard is expected to be in the early February, that is around 5th of February onwards. Okay, so it's a big thing if it is confirmed, though nothing is there on the government's website yet, but this is the first time I'm disclosing this on my channel that tentatively maybe from 5th of February the board examination of SSC will start. So students, this is the time when you now know a tentative date of your board examination. You also know about the omitted portion. There is some clarity required and I'm going to try to give you that clarity with the help of this video. And not only this, there will be a series of this content wherein every topic what is omitted in Science 1, precisely in physics, we will discuss at length, comparing it with the textbook content, so that there is absolute clarity what you can leave and what you can't leave and what you should not leave. Though it appears that it can be omitted, but you shouldn't leave that and do it as a self-study. So students, without any further delay, I would like to request you all to subscribe to the channel if this is the first time you're on my channel. Okay, also share the video, forward this video to all your friends, students, teachers, anyone who you think can be benefited with the video. So without any further delay, students, let us now begin with the topic. When we talk about the content today, what we are going to cover it is what to not study for board examination 2021. बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है. So let us begin with the first topic of physics, which is gravitation. Okay, now in gravitation, in page number 1, students please be very careful. In page number 1 there is this box which says use of ICT. Okay, this use of ICT is now omitted. Okay, this you can definitely leave, which says collect the videos and PPTs about gravitational force of different planets. Now to be precise, this is kind of an article which will not affect us directly. Even if you omit this, the content is not reduced. That means the concepts are still the same for you. Okay, so that's what I said. There are few things which are omitted, okay, which may not really hamper our preparation while studying. We may have to still study that part. Okay, so this is something which you can omit. It is not really linked with anything in the topic as well. Moving ahead, on page number 2 you have an introduction to Sir Isaac Newton. So this introduction to the scientist is also omitted. That means no question like the date of birth, okay, or their lifetime questions will come in your board exam from the scientist introduction. Okay, nothing like this. Okay, where was he born? Okay, this will not come now. Okay, this will not come. I hope you understand. Okay, what does he give? So he gave laws of motion, you know. What was his lifespan, 1642 to 1727? All these kind of questions will not come in the board examination. Okay, page number 2, there is an activity related to the centripetal force. So centripetal force is technically removed. Okay, so you don't really need to study about centripetal force. Okay, it is completely removed. Okay, this is an activity based understanding. Okay, this is omitted from the portion. Page number 4. Okay, page number 4, again introduction to Johannes Kepler. Okay, again the introduction to the scientist is omitted. No questions like their lifespan, from where was he, who was he. Okay, nothing of this sort of information will be asked in your board exam. No questions related to the scientist of Isaac Newton information or related to Johannes Kepler will be asked from you in the board examination of 2021, as the both has been omitted. In page number 5 you have use your brain power.
Is there a gravitational force between two objects kept on a table or between you and your friend sitting next to you? If yes, why don't the two move towards each other? This question directly or indirectly will not be asked in your board examination. Well, the answer was pretty simple, that yes, there exists a gravitational pull between the two objects or two people or your friend sitting next to you, between you and your friend. And if yes, why don't you guys move? Is because there is a greater gravitational force of the earth which is actually pulling them, and your forces are not that heavy or of that quantum or magnitude that they can overcome the gravitational pull of the earth acting on you and your friend. And that is the reason you guys are sticking to the earth and are not getting attracted to each other. Anyway, this was the story of this question. That has been omitted. Now page number 5 is technically completely omitted. Okay, why did Newton assume the inverse square law? Big thing. Okay, inverse square law is omitted. Okay, inverse square law has been omitted. You don't really need to study about inverse square law anymore. Okay, this entire article of uniform circular motion and the magnitude of the centripetal force, मतलब ये देखो वहीं से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हट गया ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर फोर्स, ये सारी चीज़ें जो है, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें अब नहीं पूछी जाएंगी डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में. ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें फिर भी आना चाहिए. ठीक है, स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं अगर यूज़ करना पड़े तो हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए. स्पीड is equal to distance traveled upon time taken by the body. ये आना ज़रूरी है. ठीक है, ओके. बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये डेफिनेटली नहीं पूछे जाने वाला. ये वैसे भी पोर्शन में था नहीं, मैंने एक वीडियोस के ऊपर बनाया हुआ है कि ये वैल्यू कैसे आता है, बट अब तो खैर इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, मूविंग अहेड, पेज नंबर 5 पे ये पूरा जो डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन नहीं आएगा, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, ये वही इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही डिस्कशन है. ठीक है, तो ये पूरा जो डेरिवेशन है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो ओमिट हो चुका है. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही पेजेस हैं स्टूडेंट, ताकि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उस समय पीपीटी पे. ठीक है, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, नथिंग विल कम. एंड हाउ डिड ही कंक्लूडेड अबाउट द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये अब तुम्हें बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. पेज नंबर 6 में यूज़ योर ब्रेन पावर अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन एग्जाम्पल नंबर 2. तो देयर इज़ वन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2, उसका ये एक फर्दर एलैबोरेटेड क्वेश्चन था, ये अब हट गया है. मतलब ये न्यूमेरिकल अब तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, पेज नंबर 7 पर ये एक पिंक कलर का बॉक्स है. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई एंड लो टाइड्स फ्रॉम द ज्योग्राफी बुक्स. ऑब्जर्व द टाइमिंग ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स एट वन प्लेस व्हेन यू गो फॉर अ पिकनिक टू say to be a beach. Take the pictures and hold an exhibition. Now this is not there. Again, this is to reduce the time frame of teaching in school. Okay, conceptually nothing has been removed. Okay, this is not conceptual. Topic पढ़ने के लिए ये एक्टिविटी जो है वो एक एडिशनल टाइम टेकिंग एफर्ट था. ठीक है, तो अगेन हमारे कॉन्सेप्ट में इस एक्टिविटी के ना होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस वॉज जस्ट टू कलेक्ट the information, hold the exhibition and stuff like that. Okay, so again this is done primarily to reduce the time taken by the school to complete the particular topic. Okay, moving ahead, page number 9, ये पूरा जो पार्ट है ये निकाल दिया गया है. ये एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जो अब नहीं पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना. मतलब मास एंड वेट के ऊपर बोर्ड में डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, मास और वेट के ऊपर बोर्ड में डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. ओके, ये फॉर्मूला आना ज़रूरी है क्योंकि ये है बोर्ड में. ठीक है, ये यहाँ पे उसका एप्लीकेशन था. आर यू गेटिंग इट? बट ये फॉर्मूला बोर्ड में है. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला भी नहीं है ना. डोंट गो जस्ट बाय द वर्ड. ये डिस्कशन नहीं है. मतलब मास एंड वेट का जो कंटेंट है अब ये बोर्ड में डायरेक्टली 2021 में एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा. ना ही वो और ना ही ये जो ब्लू बॉक्स है. ठीक है, इसमें से भी कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं आएगा.
ठीक है, कि हम वेट और मास दोनों के लिए हम मास ही क्यों मेजर करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, उसका गिव रीज़न या किसी भी तरह से ये नहीं पूछा जाएगा। ओके, आई होप वी आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन व्हाट नॉट टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 में डिड यू नो करके एक है, ग्रेविटेशनल वेव्स का एक आर्टिकल है। अब ये टेक्निकली ये पूरा आर्टिकल हमें नहीं पूछा जाएगा, नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्टडिंग अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके, ये बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ये अब ओमिट हो चुका है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू अस। इसी तरह से पेज नंबर 11 पर डिड यू नो द वैल्यू ऑफ जी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट गिवन प्लेस ऑन द अर्थ, डज एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर मासेस और एनी अदर प्रॉपर्टीज when dropped off the same height and falling freely will reach earth at the same time। ये जो did you know का है, अगेन ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसे ये ईयर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, किसने कहा ये नहीं पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ओके, बट क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं ओमिट किया गया है तो वो हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल एम नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने एक फेदर और एक बॉल को ड्रॉप किया है एक वैक्यूम चेम्बर में, और वो दोनों सेम टाइम पर सेम स्पीड के साथ सेम एक्सेलरेशन दिखाते हुए अर्थ पे टकराते हैं। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो गाइस कुछ नहीं देखा, जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर देखो, कमेंट करो उसके ऊपर और बताओ कि वो वीडियो तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इसी तरह से पेज नंबर 14 में एक और डिड यू नो है, वेटलेसनेस इन स्पेस। इसका जो आंसर है ये उसी वीडियो में है जिसकी मैंने अभी बात की। बेसिकली ये क्या है ये अब तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वेटलेसनेस इन स्पेस क्यों होता है, देखो टेक्निकली हमने रिलेटिवली इसको स्टडी किया कि जब वो दो चीज़ें गिर रही हैं, तुम्हें दिख रहा है वो गिर रही हैं क्योंकि देयर सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ चेंजिंग। ओके, अगर पीछे मैं ब्लैक एकदम अंधेरा कर दूँ, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कभी कि वो बॉडीज़ गिर रही हैं, तुम्हें खाली लगेगा कि वो स्टैटिक है, तुम्हें कभी भी ये नहीं पता लगेगा कि वो गिर रही है। ठीक है, तो इन्फिनिट स्पेस में जब हम जाते हैं तब एक्चुअली एवरी बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली एंड एवरी बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, दैट इज़ वाई विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देयर इज़ नो हेल्डिंग अप द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एयर स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, इसीलिए वेटलेसनेस ऑब्जर्व किया जाता है स्पेस में। ठीक है, दे आर एक्टिंग एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो मतलब ये उसका डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, बट अब इसको पढ़ने की या समझने की भी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वेटलेसनेस इन स्पेस मतलब मास और वेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पर ओमिट कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ओमिटेड है। ठीक है, ये तुम्हें लर्न करने की या समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट ना करो। ओके, तो समरी देख लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स, हमने क्या यहाँ पे समझा, क्या देखा। ठीक है, पेज नंबर 1 में एक बॉक्स था यूज़ ऑफ आईसीटी, ये ओमिटेड है। पेज नंबर 2 में ये दोनों ओमिटेड हैं। 4 में 5 एक तरीके से पूरा पेज ही ओमिट कर दिया है। 6 पेज नंबर पे यूज़ योर ब्रेन का एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये तुम लोग को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है तुम्हारे ग्रुप्स पे। ठीक है, और फिर ये जो तीनों हैं ये डू यू नो से रिलेटेड लास्ट की 3 चीज़ें जो ओमिट हो गई हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हें एग्जैक्टली बुक से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मुझे कमेंट पे बताओ कि क्या अब तुम्हें क्लैरिटी है कि इस टॉपिक में हम क्या क्या ओमिट कर सकते हैं, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, किस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये भी बताओ कि क्या मैं बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ, क्या ये तुम्हें हेल्प कर रहा है। क्योंकि जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है, फिज़िक्स के सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं, जिसका हमने क्या नाम दिया है, व्हाट टू नॉट स्टडी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। मैं चाहता हूं कि इसके बाद मैं तुम लोग को ये भी बताऊं कि व्हाट टू रियली स्टडी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट की। तो जो बचा हुआ है उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, क्या प्रिपरेशन करके हम जाएं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हमें फिज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स मिले। वो अभी अपकमिंग सीरीज़ में होगा, पहले हम ये सीरीज़ ख़त्म करेंगे। तो कमेंट करो, बताओ
कनेक्ट करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करना मत भूलो, ठीक है। और जो हो सके उस तरह से इस चैनल को प्रोपोगेट करिए, ठीक है। कीप मी मोटिवेटेड, help me in spreading a word. I'm sure that a lot of people out there need this kind of support at current situations, ठीक है। And always, no matter what is the situation outside, people do need these kind of support, and I am here to give the quality content for you all, and I am committed to what I am doing for my kids. So with that, students, this is your EdTech Guru Aman Bhatia signing off. Soon I will see you in another video. Till then, take care of yourself and keep learning.